پھر وہ آنی لڑے تھے جنہیں کاربینرز اور گیئر کہا جاتا تھا۔ خطرناک بلندی کی طرف جانے والا پتھر میں ڈرل کر کے سوراخ کرتا تھا اور ان میں بولٹس کستا تھا یا پھر میخوں کی طرح انہیں ہتھوڑی سے ٹھونکتا تھا۔ وہ نائلون کے مضبوط رسے کو بولٹس کے حلقوں میں اس طرح سے گزار کر چلا جاتا تھا کہ گرنے کی صورت میں وہ رسوں کے ساتھ جھول جائے۔ کو پہما خود کو رسیوں اور بیلٹس کے 2 حلقوں میں سے گزارتا تھا اور یہ حلقے اس کی رانوں کے بالائی حصے کو اپنی گرفت میں رکھتے تھے۔ اس گرفت کو بارنیس کا نام دیا جاتا تھا۔ 9ویں-10ویں دن کی بات ہے جب عادل بغیر کسی مدد کے از خود 1000 فٹ اونچی چٹان پر پہنچا۔ بلندی پر کھڑے ہو کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اسے عجیب سا فخر کا احساس ہوا۔ سرمد صاحب نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، تم نے میرے اندازے سے 2-3 دن پہلے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی صرف شروعات ہے۔ ابھی اس سے کہیں مشکل چڑھائیاں آئیں گی۔ آپ کا مطلب ہے اب کسی اور جگہ مشق ہوگی؟ ہاں، وہ دیکھو، وہ دائیں طرف۔ کل ہم اس چڑھائی پر کام کریں گے۔ لیکن سر وہ تو بالکل سیدھی ہے، کسی دیوار کی طرح۔ اسے دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ جہاں چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو، شروع میں اسے دیکھ کر بھی تو خوف آیا تھا۔ وہ مسکرانے لگے۔ وہ چپ رہا۔ کرسٹل نے کہا، یہ راکس دور سے زیادہ ڈینجرس نظر آتا۔ جب ہم ان پر چڑھنا شروع کرتا تو یہ ایک دم دوست کی طرح لگتا، بالکل اپنا اپنا سا۔ سرمد صاحب نے کہا، زندگی کی ہر دشواری چٹان کی طرح ہی ہوتی ہے، دور سے بہت دشوار، لیکن جب اس پر کمند پھینکتے ہیں اور لمبی سانس لے کر چڑھنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ قدموں کے نیچے بچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک کرسٹل کی نظر عادل کی بائیں کونی پر پڑی۔ وہ بولی، تم کو تو یہاں چوٹ لگا؟ تم نے میڈیسن کیوں نہیں لگایا؟ عادل نے کہا، پرسوں ہمایوں بھائی کو چوٹ لگی تھی، انہوں نے بھی تو کچھ نہیں لگایا تھا۔ بھائی ہم تو عادی ہو چکے ہیں، تمہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے فرسٹ ایڈ پاؤچ کی زپ کھولنی چاہی، مگر عادل نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نہیں ہمایوں بھائی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہما یارا دوزخ ہما یارا جنت، مجھے بھی ایسے ہی چلنے دیں۔ اچھی سوچ ہے، سرمد صاحب نے تائید کی۔ طبی امداد ہمیں کبھی کبھی سہل پسند بھی بناتی ہے۔ ہم جتنا زیادہ نیچر کے قریب رہیں اتنا ہی سخت جان ہوتے ہیں۔ میں کئی ایسے مشہور کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کبھی اپنی کسی تکلیف کے لیے پین کلر نہیں کھائی، اور اگر کبھی کسی زخم پر ٹانکوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بغیر سن کرنے والے انجیکشن کے ٹانکے لگوائے۔ شاید تمہیں یہ عجیب لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں مارشل آرٹ کے ایک ایسے کھلاڑی کو جانتا ہوں جس نے اپنے بازو کی ہڈی کا آپریشن بغیر بے ہوش ہوئے یا لوکل اینستھیسیا لیے کرایا، ساری تکلیف جھیلی اور پورے ہوش و حواس میں جھیلی۔ ایسی چیزیں برداشت اور حوصلہ تعمیر کرتی ہیں، اور یہی برداشت اور حوصلہ آگے چل کر بڑی بڑی کامیابیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر سرمد صاحب نے جو باتیں کہیں وہ عادل کو دل میں اترتی محسوس ہوئیں۔ اگلے روز معمولات سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس دوسری اونچائی کی طرف روانہ ہوئے جو 200-300 فٹ تک تو مناسب تھی۔ اس کے بعد تقریباً 800-900 فٹ تک بالکل عمودی دیوار کی طرح چلی گئی تھی۔ یہاں وہ دراڑیں اور ابھار بھی بہت کم تھے جو کوہ پیما کو ہاتھوں پاؤں جمانے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پہلے کون جائے گا؟ سرمد صاحب نے پوچھا۔ میں جاؤں گا، خاموش طبع ہمایوں نے اعتماد سے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سامان سے پوری طرح لیس ہو کر مخصوص میخیں ٹھوکتا ہوا اور رسہ جھلاتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ سرمد صاحب نے عادل کو اشارہ کیا کہ وہ ہمایوں کے پیچھے پیچھے جائے۔ عادل نے دیکھ لیا تھا کہ پیچھے جانے والوں کے لیے کام کافی آسان ہو جاتا ہے، انہیں بولٹنگ نہیں کرنی پڑتی اور رسے کی سپورٹ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ عادل کے پیچھے کرسٹل نے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ سرمد صاحب نیچے رہے اور ان تینوں کو مختلف ہدایات دیتے رہے۔ انہیں اگر کسی بولٹ کی مضبوطی پر شک ہوتا تو اسے مزید مضبوط کرواتے۔ ان کی ہدایات عادل کے لیے بھی بہت حوصلہ افزا ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ تقریباً 600 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکے تھے جب اچانک عادل کا پاؤں پھسلا۔ جھٹکا لگنے سے رسے پر سے اس کے ہاتھ کی گرفت بھی ختم ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے آیا۔ حفاظتی رسہ اس کی کمر سے پرویا ہوا تھا، ورنہ وہ چند سیکنڈ کے اندر نوکیلی چٹانوں پر گر کر راہ عدم ہو جاتا۔ پھر بھی گرنے کا احساس بڑا دل دہلانے والا تھا۔
वो नीचे ना भी गिरता तो शदीद जख्मी हो सकता था। अचानक उसने खुद को एक नर्म गुदास लम्स के घेरे में पाया। ये क्रिस्टल थी जो 8-10 फुट नीचे आ रही थी। उसने बड़ी महारत से आदिल को मजीद नीचे फिसलने से रोक लिया। अब वो उसकी बाहों में था। वो अकब से उसे सहारा दिए हुए थी। ओके, यू आर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने हाँफती हुई आवाज में आदिल को तसल्ली दी। साथ साथ वो ये कोशिश भी कर रही थी कि आदिल दोबारा रस्से पर गिरफ्त मजबूत कर सके। इन परेशान कुन लम्हों में भी आदिल को एहसास हुआ कि क्रिस्टल की नरम गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही हैं और वो पूरी तरह उसकी बाहों में है। चंद सेकंड्स के बाद वो दोबारा दुरुस्त पोजीशन में आ गया। थोड़ी देर सांस लेने का ये अच्छा बहाना ढूंढा है टॉम ने। तुम्हारा मतलब है मैं जानबूझकर गिरा हूं? ये तो ठीक से पता नहीं, मगर तुम गिरे अच्छे हो। गुड फॉलिंग। वो ढके छुपे लफ्जों में आदिल को बता रही थी कि उसका यूं गिरना और उसकी बाहों में आना उसे अच्छा लगा है। आदिल का स्टेमिना इतना ज्यादा नहीं था। उसे रास्ते में 3 बार सांस लेना पड़ी। बिलाखिर वो मंजिल पर पहुंच गए। तेज हवाओं ने उनका इस्तकबाल किया। क्रिस्टल ने अपना हेलमेट उतार दिया। उसके बाल दीवानावार लहराने लगे। फिर उसने सन ग्लासेस भी उतार दिए। उसकी आंखों में शौक था और खुशी की चमक थी। न जाने क्यों आदिल को होटल की वो रात याद आ गई जब ल्यूपेट नामी नौजवान ने उसे कमरे में घेरा था और बदतमीजी की थी। उस वक्त वो एक मजबूर बेकस लड़की की तरह नजर आई थी, उस लड़की से बहुत मुख्तलिफ जो अब हवा में अपने बाजू लहरा रही थी और मुंह खोलकर ताजा सांसें अपने सीने में भर रही थी। हुमायूं हमेशा की तरह गुमसुम था और कुदरती नजारों में खोया हुआ था। आदिल ने उससे पूछा, क्या देख रहे हो हुमायूं भाई? यहां से एक बहुत अहम जगह काफी साफ नजर आ रही है। कौन सी जगह? उसने उंगली से शुमाल मगरिब की तरफ इशारा किया। यह है वो चोटी जिस पर हमें जाना है। आदिल की ऊपर की सांस जैसे ऊपर ही रह गई। वो हैरत से देखने लगा। ये चोटी कई दूसरी चोटियों की तरह अजीम उश्शान केटू के पहलू में वाक़ थी। ये नीचे से तो शायद कुछ ढलवान थी, लेकिन जूं जूं बुलंद होती थी सीधी होती चली जाती थी। उसका बालाई हिस्सा बिल्कुल एक सीधी दीवार की तरह था, बल्कि कहीं कहीं तो यह लगता था कि यह सफेद दीवार जमीन के साथ 90 दर्जे से भी ज्यादा का जाविया बनाती है, यानी बाहर की तरफ झुकाव रखती है। क्या देख रहे हो? हुमायूं ने अपनी भारी आवाज में पूछा। बहुत मुश्किल पहाड़ है ये, लेकिन इस पर पाउंदों के आसार तो कहीं नजर नहीं आते। पाउंदे पहाड़ की दूसरी तरफ हैं। समझो उनकी बस्तियां पहाड़ के दामन में हैं और यही वजह है कि हमें इस तरफ आना पड़ा है। चट्टान पर खड़ा आदिल उस फलक बोझ चोटी को देख रहा था। कुदरत की उस अजीमुशान हैबतनाक तख्लीक के मुकाबले में उसने खुद को बहुत छोटा और नाचीज महसूस किया। क्रिस्टल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम परेशान क्यों होता? क्या तुमको सर सरमत का बात याद नहीं? ये हाइट दूर से ज्यादा डेंजरस लगता। जब हम अपने इरादों को स्ट्रांग कर लेगा तो ये सब कुछ इजी हो जाएगा। आपकी जबान में बिल्कुल हलावे की तरह। हलावा? ये क्या होता है? आदिल ने पूछा। हुमायूं बोला, ये हलवा कह रही है, यानी हलवे की तरह आसान। वो मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया। हलवे के जिक्र ने आदिल को एकदम कहीं दूर पहुंचा दिया। उन बर्फानी चट्टानों से बहुत आगे पंजाब के मैदानों में और फिर बावलपुर की चलचलाती धूप में, जहां लाली के खेतों में किसान अपना पसीना बो रहे थे, उसे अपने गांव लाली की पिछली ईद याद आ गई। रिहाना ताया फरासत की हवेली में काम करके वापस आई तो सीधी आदिल के पास छत पर आई थी। उसके हाथ में एक पोटली सी थी। ये क्या है? उसने पूछा था। हलवा, तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। उसने पोटली खोली तो शीशे की खूबसूरत प्याली नुमा प्लेट में सूजी और अंडे का हलवा था। ऊपर से किशमिश थी और बादामों का चूरा डाला किया था। ये उसके लिए शहजादी ने भेजा था। आदिल ने हलवा लेना चाहा तो रेहाना चहक कर बोली, ये सारा तुम्हारा नहीं आदे भाई, आधा किसी और का है और वापस जाएगा। वो समझ गया कि वो क्या कह रही है। वो नीचे से छोटा चम्मच लाया और कुछ हलवा खाकर बाकी रेहाना को वापस कर दिया। वो कहने लगी, नहीं आदे भाई, ये चम्मच भी यहीं रखो। जिससे हलवा खाया है
मुझे यही ऑर्डर है। आदिल ने मुस्कुराते हुए चम्मच भी प्लेट में रख दिया। वो दिन ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों से लबरेज थे। उस वक्त उन दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे और जुदाई का मोड़ यूं अचानक सामने आ जाएगा। आदिल, टॉम किस सोच में खो गया? क्रिस्टल ने अदा से कहा। कुछ नहीं, वैसे ही कुछ याद आ गया था। शायद हलावा याद आ गया होगा, वो बोली और फिर खुद ही हंसने लगी। इसके साथ ही उसका दिलकश पैकर भी हंसता हुआ महसूस हुआ। वो अक्सर पाकिस्तान आती रहती थी और उसने बड़ी दिलचस्पी से उर्दू सीखी थी। वो नीचे उतर आए और फिर दीगर मशकों में मसरूफ हो गए। आदिल कभी कभी सरमद साहब की सख्त जानी देखकर हैरान रह जाता था। इतनी उम्र में उनसे ऐसी जफाकशी की तवक्को उसे हरगिज़ नहीं थी। वो कुछ खाए पिए बगैर घंटों उनके साथ ट्रेनिंग में मसरूफ रहते और कभी कभी बस दूध का एक टिन पीकर सो जाते। वो जिंदगी की बहुत सी लज्जतों से दूर थे। मीठा वो नहीं खाते थे, नमक ना होने के बराबर, आराम कम, काम ज्यादा, और जहां तक अज़दवाजी खुशियों की बात थी वो भी उनके कुछ ज्यादा करीब नहीं थी। लगता था कि उन्होंने कड़ी मुशक्कत को महबूबा बना रखा है और मुश्किलात उनके बच्चे हैं जिनको वो बड़े प्यार से गले लगाते हैं और उनकी आमद पर परेशान होने के बजाय अपना सीना उनके लिए खोल देते हैं। वो दूसरों से भी यही चाहते थे कि मुश्किलात और तकलीफों से भागने के बजाय उनके पीछे भागें, उन्हें गोद में उठाएं और उनसे खेलें, उनके अंदर से जिंदगी का प्यार कशीद करें। वो रात भी आदिल ने पहाड़ी ढलवान पर लगे हुए जदीद इंग्लिश कैंप में गुजारी। ये 3 आदमियों के लिए काफी था, ताहम इसमें हुमायूं और आदिल ही होते थे। ऐसी जगहों पर बर्फानी रेले का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। बहरहाल अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सर सरमद ने ये खेमे बड़ी मुनासिब जगह पर लगवाए थे। रात में आदिल देर तक जागता रहा। शहजादी का तसव्वुर बार बार जहन में आता रहा। वहां क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, उसे कुछ खबर नहीं थी। वो बस दुआ ही कर सकता था। इसके साथ साथ अब उसके दिल में ये उमंग भी पैदा हो रही थी कि यहां जो कुछ होना है जल्द से जल्द हो जाए। अगर इस मुहिम जोई के सिलसिले में वाकई उनके हाथ में एक बड़ी रकम आने वाली है तो फिर यह रकम जल्द से जल्द उस तक पहुंचे। उसने तहैया किया कि वो ट्रेनिंग में पहले से ज्यादा जान मारेगा और सर सरमद को हैरान कर देगा। अगले रोज आदिल बहुत चाको चौबंद था। सुबह सबसे पहले 3-4 किलोमीटर की दौड़ हुई थी। उसके बाद फिजिकल फिटनेस की वर्जिश और नाश्ता। नाश्ते के फौरन बाद वो लोग क्लाइंबिंग के साजो सामान के साथ कल वाली चट्टान के दामन में पहुंच गए। सरमद साहब के हाथ में स्टॉप वॉच थी। उन्होंने उन तीनों को एक बार फिर चढ़ाई का हुक्म दिया। आज काम इस लिहाज से निस्बतन आसान था कि मीखें पहले से गड़ी हुई थीं और तवील रस्सा भी झूल रहा था। उन्होंने आगाज किया। आज क्रिस्टल सबसे आगे थी, उसके पीछे आदिल और आखिर में हुमायूं। वो तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर थे जब क्रिस्टल ने कहा, आदिल, कल हम तुमको संभाला, अगर आज हम फिसला तुम हमको संभालेगा? तुम ना ही फिसलो तो अच्छा है, आदिल ने कहा। हम सिर्फ फर्ज कर रहा है, आदिल ने हाँफती हुई आवाज में कहा। मुझे तो लगता है कि फिर हम दोनों को हुमायूं भाई ही संभालेगा। वो खिलखिलाकर हंसती। आज कहीं सांस लेने का मौका भी नहीं था। वो मुसलसल चढ़ रहा था। 2-3 बार क्रिस्टल ने और एक बार हुमायूं ने भी उससे कहा कि वो सांस लेना चाहे तो ले ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो सोच रहा था कि अगर क्रिस्टल लड़की होकर वक्फा नहीं ले रही तो वो क्यों ले। काफी कोशिश के बाद वो बुलंदी पर पहुंच गए। सख्त सर्दी के बावजूद वो लिबास के अंदर पसीने से शराबोर थे और उनके बाजू जैसे शल हो चुके थे। सरमद साहब का ऑर्डर था कि चोटी पर 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना। उन्होंने इस हिदायत पर अमल किया और एक बार फिर हाँफते हुए नीचे उतरने लगे। उतरते हुए भी आदिल ने कहीं वक्फा नहीं लिया। उसकी सांस धोखनी की तरह चल रही थी और बाजू सुन्न होते जा रहे थे। बहरहाल वो काफी तेजी से नीचे उतरने में कामयाब हो गया। उसने दाद तलब नजरों से सरमद साहब की तरफ देखा। वो मुतमईन तो नजर आए, लेकिन ऐसी कोई दाद उनकी आंखों में दिखाई नहीं दी। चंद सेकंड बाद उन्होंने जो फिक्रा कहा वो बिजली बनकर आदिल की समाज से टकराया। वो कह रहे थे, 5 मिनट का वक्फा करके दूसरी बार चढ़ाई शुरू करेंगे। दूसरी चढ़ाई? आदिल ने दिल ही दिल में दोहराया।
और उसका कलेजा मुंह को आने लगा। क्या तुम तैयार हो आदिल? सरमद साहब ने सपाट लहजे में पूछा। जी आप कहते हैं तो तैयार हूं, वो मरी मरी आवाज में बोला। शायद तुम ज्यादा थक गए हो। चलो ठीक है, दूसरी चढ़ाई कैंसिल करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि जो जाना चाहे चला जाए, जो रुकना चाहे रुक जाए। क्रिस्टल फौरन हाथ उठाकर बोली, हम जाएगा सर, अभी जाएगा, जस्ट नाउ, उसने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर ही दौड़ती हुई वापस चट्टान की तरफ चली गई। सरमद साहब ने मुस्कुराते हुए हुमायूं को मुखातिब किया और बोले, चलो हुमायूं, तुम जरा आदिल को एक्सरसाइज वगैरह कराओ। हुमायूं आदिल की तरफ मुतवज्जे हो गया। क्रिस्टल ने रस्सों के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। 15-20 मिनट में ही वो काफी ऊपर चली गई। चट्टान के साथ चिपकी हुई वो बिल्कुल छोटी सी नजर आने लगी। उसका सुर्ख हेलमेट जैसे एक नुक्ते की तरह था। वो लड़की होकर आदिल से कहीं ज्यादा बर्दाश्त और स्टेमिना का मुजाहरा कर रही थी। आदिल जो शाहनवाना के मेले में खुद को चढ़ाई का चैंपियन समझता था, एकदम खुद को खजल महसूस करने लगा। इसके साथ साथ उसे सरमद साहब पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। उस रोज उसने पक्का तहैया किया कि वो अपने स्टेमिना को बेहतर करेगा और कम से कम इस मामले में तो क्रिस्टल और हुमायूं को नीचा दिखाएगा। यही वजह थी कि अगले रोज जब वो सुबह सवेरे तराई के साथ साथ हमवार ट्रैक पर जॉगिंग के लिए निकले तो वापसी के बाद आदिल दूसरा राउंड लगाने के लिए निकल गया। तकरीबन 4 किलोमीटर की दौड़ तो वह पहले ही लगा चुके थे। अब अगर वो ये दूसरा राउंड भी मुकम्मल करता तो ये 8 किलोमीटर से जायद होता। वो दौड़ता रहा और हाँपता रहा। उस पर कुछ ऐसी ही कैफियत तारी थी जो कभी कभी गांव में हो जाया करती थी। ऐसे ही मूड के जेर असर वो नूरी नद के पुतले पर पिल पड़ा था। मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया था। बर्फ से घिरे वो इस ट्रैक पर अंधाधुंध भागते हुए भी उसे यही लगा जैसे एक नूरी नद उसके करीब है और वो उसके साथ साथ भाग रहा है, उसे नीचा दिखाना चाहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर यह नूरी नद क्यों उसके सामने आ जाता है, क्यों आ जाता है? उसने अपनी रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। उसकी टांगें शल होने लगीं। कभी कभी लगता था कि वो बस गिरने ही वाला है, लेकिन वो भागता रहा और दूसरा राउंड भी उसने मुकम्मल कर लिया। उसे क्रिस्टल की आंखों में थोड़ी सी हैरत नजर आई। उस हैरत ने उसे महसूस किया, लेकिन रात तक आदिल को बुखार हो गया। खाने के दौरान में उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर क्रिस्टल ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, ओह गॉड, तुमको तो बुखारा है। बुखारा नहीं, बुखार होता है, सरमद साहब ने कहा और आदिल की पेशानी पर हाथ रखा। फिर बोले, वाकई भाई तुमको तो बुखार है, काफी ज्यादा लगता है। वो कुछ देर चुप रहकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि तुम कोई दवा ले लो। नहीं सर, मैं दवा नहीं लूंगा। आप ही ने तो कहा था कि दवा के बगैर तकलीफ का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। सरमद साहब ने इसरार नहीं किया और खामोश हो गए। आदिल भी खामोश हो गया। रात 10 बजे तक बुखार तेज हो गया। आदिल अपने खेमे में आकर लेट गया। उसके मुंह में कड़वाहट घुली हुई थी। कभी कभी सरमद साहब का रवैया अजीब लगता था। अगर वो इसरार करते तो वो दवा ले लेता, लेकिन उन्होंने दूसरी बार कहने की जहमत भी नहीं की थी। अब भी वो इत्मीनान से बाहर हुमायूं और क्रिस्टल के साथ बैठे थे। अलाव दहक रहा था और वो अपने ताकतवर ट्रांजिस्टर रेडियो पर कोई प्रोग्राम सुनने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान में क्रिस्टल अंदर चली आई। उसने अपना ठंडा हाथ आदिल के तपते हाथ पर रखा। आदिल, तुमने अपने साथ खुद ज्यादती किया। एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। तुमने एकदम 4 मील के बजाय 8 मील का राउंड लगाया। तुमको बुखारा हुआ। सर सरमद ने तुमको कहा भी था, हवा बहुत कूल चल रहा है। हमदर्दी का शुक्रिया, थैंक यू, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, उसने कहा और करवट बदल कर लेट गया। उसका ख्याल था कि क्रिस्टल चली जाएगी, लेकिन वो वहीं बैठी रही। तुम्हारे शोल्डर दबाऊं? इससे पूरी बॉडी का पेन कम होता। नो थैंक्स। वो फिर भी बैठी रही और उसके कंधे दबाने लगी। वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसने अपने हाथों को ऐसे अंदाज से हरकत दी कि वाकई आदिल की गर्दन और कमर का दर्द कम होने लगा, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। रहने दो क्रिस्टल,
मैं ठीक हूं। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर क्रिस्टल ने अपने हाथ के दबाव से उसे लेटे रहने पर मजबूर कर दिया। देखो आडल, टॉम नाशुक्री करता। बर्मिंघम में सबसे अच्छी फिजियोथेरापिस्ट तुम्हारा ट्रीटमेंट करता और तुम इनकार करता। उसने आदिल को औंधा लेटने पर मजबूर किया और उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मखसूस पट्टों पर दबाव डालने लगी। वाकई वो अपने हाथों में एक तरह का जादू रखती थी। उसका लम्स, उसकी सांसों की सरसराहट आदिल अपने बिल्कुल करीब महसूस कर रहा था। पिछले कई रोज से उसे लग रहा था कि क्रिस्टल इशारों किनायों में उसकी हौसला अफजाई कर रही है। टॉम ने किसी से प्यार किया? उसने मसाज करते करते अचानक आदिल से पूछा। वो गड़बड़ा गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कौन सा ऐसा गलत बात किया? वो अपनी नीलगू आंखें छपक कर बोली। मैं इस सिलसिले में बात करना नहीं चाहता। अच्छा, ओके, ठीक है, हम नई बात करेंगे, लेकिन तुम लेट जाओ, तुम्हारा और ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं, इतना काफी है, अब मैं सोना चाहता हूं, आदिल ने जरा सख्त लहजे में कहा। यू आर सो नाइस एंड हैंडसम। हम तुमको लाइक करता। अगर किसी भी तरह हम का जरूरत हो तो हम हाजिर। ओके, थैंक यू, आदिल ने कहा। वो नीची छत वाले खेमे में झुककर खड़ी हो गई और फिर उसे लगावट की नजरों से देखती हुई बाहर चली गई। आदिल अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो सर तपा शोला थी। उसका आतिशी बदन खिंची हुई कमान की तरह था और निगाहें तीर की तरह दिल दिमाग में घुसने की सलाहियत रखती थीं। पता नहीं सरमद साहब ने ये क्या चीज पाल रखी थी और क्यों। वो तो बिल्कुल और तरह के बंदे थे। आदिल प्यार की एक नाकाबिले शिकस्त जंजीर से बंधा हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो खुद को इस आतिशी लड़की की लपेट में महसूस करता। उसका मायने खेज फिक्रा अब भी आदिल के कानों में गूंज रहा था। अगर किसी भी तरह हम का जरूरत हो तो हम हाजिर। उसने इन बेहुदा ख्यालात की योरिश से ध्यान हटाने के लिए अपने जहन में शहजादी का तसव्वुर बसाया और अपने तसव्वुर से बातें करते करते सो गया। अगले रोज भी आदिल का बुखार मौजूद था। उसे यकीन था कि आज सर सरमद उसे ट्रेनिंग से छुट्टी देंगे, लेकिन यह जानकर उसे सख्त हैरानी हुई कि वो उसे बाहर बुला रहे थे। उन्होंने कहा, हम दौड़ने के लिए जा रहे हैं। आज तुम दौड़ नहीं लगाओगे, लेकिन चढ़ाई की मश्क तुम्हें करना होगी। अगर कोई दवा वगैरह खानी है तो खा लो, पैरासिटामोल टाइप की। नहीं सर, दवा की जरूरत नहीं, आदिल ने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा, लेकिन लहजे के नीचे कहीं हल्की सी तलखी भी मौजूद थी। नाश्ते के नाम पर आदिल ने पाउडर मिल्क से बनाया गया थोड़ा सा दूध पिया और एक एनर्जी बार खाई। उसके बाद ग्रुप के साथ चट्टान की तरफ रवाना हो गया। बुखार से बदन दुख रहा था और सरापा में नकाहत सी भरी हुई थी। आज फिर उन्होंने नायलॉन के तवील रस्सों की मदद से तकरीबन 1500 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ना था और फिर रस्सों ही के जरिए फिसलते हुए नीचे उतरना था। अगले तकरीबन 2 घंटे आदिल के लिए सख्त अजियतनाक साबित हुए। बुखार की हालत में ऐसी सख्त मुशक्कत उसका अंजर पंजर हिलाने के लिए काफी थी, लेकिन उसे किसी न किसी तौर गुजारा करना था। उसे उकसाने में क्रिस्टल की उस बात ने भी अहम किरदार अदा किया कि पिछली मर्तबा सरमद साहब ने भी तेज बुखार की हालत में तकरीबन 3000 फुट तक क्लाइंबिंग की थी और गैर मुल्कियों की एक टीम को हैरान कर दिया था। मश्क खत्म हुई तो आदिल का जिस्म पसीने में शराबोर था और बुखार भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने सुबह के मुकाबले में खुद को काफी चाको चौबंद महसूस किया। रात तक वो तकरीबन ठीक हो चुका था। वो बिस्तर पर लेटा तो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर वो दवा खा लेता और लेट जाता तो शायद इस वक्त भी खुद को बीमार ही तसव्वुर कर रहा होता। अगले रोज सरमद साहब ने आदिल को छुट्टी दी, बल्कि आदिल के साथ साथ क्रिस्टल और हुमायूं को भी छुट्टी से लुत्फानंदोज होने का मौका दिया। सुबह सवेरे की तवील दौड़ के बजाय वो लोग मजे से अपने कैंप में चाय वगैरह पीते रहे और गपशप भी करते रहे। सरमद साहब की बातें कभी कभी समझ से बालातर होती थीं। उसे छुट्टी की जरूरत कल थी, लेकिन ये आज उसे मिली थी। यूं लगता था कि सरमद साहब को आज अपने कैंप के आसपास रहना ही अच्छा लग रहा था। उस दिन सबने खूब एंजॉय किया। धूप भी चमक रही थी और केटू समेत इर्द गिर्द की सब चोटियों ने सुनहरे ताज पहन रखे थे।
सरमद साहब ने आदिल को एक तवील लेक्चर भी दिया। एक तरह से ये क्लाइंबिंग का टीचिंग कोर्स था। इस तरह के 2-3 लेक्चर वो पहले भी बड़ी खूबी से आदिल को दे चुके थे। पता नहीं क्यों उस लेक्चर के दौरान में भी सरमद साहब आदिल को कुछ परेशान नजर आए, या शायद ये सिर्फ उसका वहम था। अगले रोज छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन सुबह सवेरे की तवील दौड़ सरमद साहब ने मुआफ कर दी। क्रिस्टल ने कहा, सर क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन अभी मुझे निकलना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। शायद कल से फिर शुरू करेंगे। नाश्ते के बाद वो क्लाइंबिंग के सारे साजो सामान के साथ एक बार फिर चट्टान पर चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। आज सर सरमद भी उनके साथ थे। इस उम्र में उनकी हिम्मत और तवानाई की दाद देने को दिल चाहता था। उनका स्टेमिना भी काबिल दाद था। वापसी से पहले उन्होंने उन तीनों को और खास तौर से आदिल को समझाया, चढ़ाई को मुश्किल समझा जाता है, लेकिन हकीकत में चढ़ाई से ज्यादा उतराई मुश्किल होती है। ज्यादातर हादसात भी उतराई के दौरान में ही पेश आते हैं। उतरते हुए कोपहमा को बेहद सब्र और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उतरते हुए उन्होंने आदिल को अपने बिल्कुल साथ रखा और हर मरहले में हिदायत देते रहे। कार्बेनर्स की तरतीब, रस्से पर गिरफ्त को ढीला और मजबूत करना, पांव का दुरुस्त इस्तेमाल, वो जैसे आदिल को उंगली पकड़कर अपने साथ चला रहे थे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने चंद गहरी सांसें ली, अपना हेलमेट उतारा, आंखों से सन ग्लासेस हटाए और आदिल से मुखातिब होकर बोले, आज कैसा महसूस हुआ? आज तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सहल भी। अंदाजा हो रहा था कि आप दूसरी बार चढ़ने का कहेंगे तो शायद वो भी आसानी से हो जाएगा। ऐसा क्यों महसूस किया तुमने? शायद इसलिए कि आप साथ थे। नहीं, इसकी वजह और है। कल तुमने ज्यादा हिम्मत और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, बुखार और नकाहत के बावजूद अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। आज तुम्हारी तबीयत बेहतर थी, इसलिए तुम्हें हर चीज आसान लगी। हम अपनी बर्दाश्त की हद को ज्यों-ज्यों बढ़ाते हैं, हमें मुश्किल काम आसान महसूस होने लगते हैं। एक शख्स जो गैर फाल है और ज्यादा वक्त घर में ही बैठा रहता है, उसको बिजली का एक बिल ही ठीक कराना पड़ जाए तो उसे एक मार्के की तरह लगता है। लेकिन एक शख्स जो एक बड़ी फर्म को संभाले हुए है और उसके मसाइल को भुगत रहा है, उसके लिए अदालत में पेशी भी कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रखती। यही मिसाल हम कई जगह लागू कर सकते हैं आदिल। हमारा हौसला बढ़ता है तो हमारे मसाइल छोटे होने लगते हैं। सरमद साहब की बातें अक्सर आदिल के दिल पर असर करती थीं। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। कल उसे सरमद साहब की सख्ती पर जो थोड़ा सा गुस्सा आया था, वो बेमायने महसूस हुआ। लंच के बाद वो सब लोग आराम करते थे। तकरीबन 2-2.5 घंटे सोते थे। सख्त वर्जिश के बाद ये आराम उन्हें एकदम चाको चौबंद कर देता था। लेकिन उस रोज आदिल का दिल लेटने को नहीं चाहा। उसका दिल जरा घूमने फिरने को चाह रहा था। वो जॉगर्स के तस्मे बांध रहा था जब क्रिस्टल ने उसे देख लिया। वेयर आर यू गोइंग? उसने पूछा। यूं ही थोड़ी सी जॉगिंग करूंगा, कुछ कमी सी महसूस हो रही है। सर सरमद से परमिशन लिया? आदिल ने गोलमोल जवाब दिया। कहां तक जाएगा? ज्यादा दूर नहीं। तो ठीक, हम भी टॉम को ज्वाइन करेंगे। उसने भी फटाफट जॉगर्स पहन लिए। सूरज की तेज शुआएं बर्फीली ढलवानों पर मुनक्किस होकर और भी चकाचौंध पैदा कर रही थीं। रात को मनफी से कहीं नीचे चला जाने वाला दर्जाए हरारत अब ऊपर महसूस हो रहा था। ताहम दूर बुलंद चोटियों पर गहरापन दिखाई देता था। क्रिस्टल ने चुस्त नेकर पहन रखी थी। मलाई जिस्म पर कोपैमाई का परतों वाला लिबास था। वो ढलवान के साथ साथ हमवार रास्ते पर दौड़ते रहे और साथ साथ हल्की फुल्की बातें भी करते रहे। सूरज अचानक ही गायब हो गया था और चोटियों से काले बादलों के काफले तेजी से नीचे उतरने लगे थे। आम का ख्याल है मौसम खराब हो जाएगा। नाउ वी हैव टू गो बैक। बादलों से डर रही हो? थोड़ा थोड़ा। यहां मौसम एकदम चेंज होता। तुमको मालूम फ्राइडे को सर ने क्या लेक्चर दिया था? क्लाइंबर को उतनी ही दूर जाना चाहिए जहां से उसकी उर्दू जवाब देने लगी। आदिल ने उसका फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा, जहां से वो मौसम खराब होने से पहले वापस आ सके। हाँ, हमको यही कहना मांगता। चलो बस 10-15 मिनट और, आदिल ने कहा। वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर मजीद आगे गए, फिर वापसी का सफर शुरू किया। लेकिन बमुश्किल 8 किलोमीटर ही तय किया होगा
कि निहायत तेज बर्फानी हवा ने उन्हें आ लिया। ये बिल्कुल ट्विस्टर जैसे बगोले थे। उन्हें लगा कि वो कहीं रुके नहीं तो ये बगोले उन्हें उठाकर गहराई में फेंक देंगे। एकदम ही तारीकी सी छा गई थी। क्रिस्टल आदिल को एक उभरी हुई चट्टान की ओट में ले आई। यहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो अपने कैंप से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे निकल आए थे। हमको इतना दूर नहीं आना चाहिए था। हमको तो ये स्नो स्टॉर्म लगता। वाकई ये सब कुछ एक तूफान की तरह था और उसने उन्हें आनन फानन ही आ दबोचा था। उसकी शिद्दत घुटने के बजाय दम बदम बढ़ती जा रही थी। फिर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे एक गरज सी हो। आदिल को अपने पांव के नीचे थरथराहट महसूस होने लगी। ओह माय गॉड, क्रिस्टल के होंठों से बेसाख्ता निकला। क्या हुआ? हमको तो ये एवलांच लगता, क्रिस्टल ने कहा। एवलांच का लफ्ज अब आदिल के लिए नया नहीं था। उसे उर्दू में बर्फानी रेला कहा जा सकता है, जो बुलंदियों से नीचे की तरफ आता है और जूं-जूं नीचे आता है अपना हजम और अपनी तबाहकारियां बढ़ाता चला जाता है। गरज दम बदम बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने बर्फीली चट्टान की ओर से उस रेले को आते देखा। यह एक खौफनाक मंजर था। बर्फ की कोई 30-40 फुट ऊंची दीवार सी थी जो गूंज पैदा करती और धुंध उड़ाती उनकी तरफ झपट रही थी। क्रिस्टल ने उसे खींचा और खुद भी चट्टान की दीवार के साथ चिपक गई। हेड डाउन, हेड डाउन, वो चिल्लाई। आदिल ने उसकी हिदायत पर अमल किया और लेटकर अपना चेहरा अपने दोनों बाजुओं में छुपाकर सर झुका लिया। करीब वो जवार थर्रा गए। एवलांच उन तक पहुंची और उन्हें रोंदती हुई चली गई। हजारों लाखों टन बर्फ थी जो 8-10 सेकंड के अंदर अंदर उनके ऊपर से गुजर गई। अगर वो उस मजबूत चट्टान की ओट में ना होते तो न जाने बर्फ के उस सैलाब में बहकर कहां के कहां पहुंच चुके होते और बर्फ का कितना बड़ा अंबार उन्हें अपने नीचे जिंदा दफन कर चुका होता। सर्दी में एकदम ही बेपनाह इजाफा हो गया था। चट्टान की ओट में होने के बावजूद आदिल और क्रिस्टल अपने कंधों तक बर्फ में धंस गए थे। बर्फ की हरकत रुक गई तो वो दोनों जोर लगाकर बाहर निकल आए। इर्द गिर्द के मंजर ने आदिल को दंग कर दिया। उसे लगा कि ये वो जगह ही नहीं है जहां वो मौजूद थे। पूरा नक्शा ही बदल चुका था। जिस तंग घाटी में भागते हुए वो आए थे अब वापस जा रहे थे। वो बर्फ गिरने से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। लगता था कि यहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। अब उनकी दोनों जानिब बुलंद चट्टानी दीवारें थीं और सामने रास्ता मसदूद था। कोपैमाई के मुकम्मल सामान के बगैर इन दीवारों पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन था। अब क्या होगा? आदिल ने कपड़ों से बर्फ छाटते हुए पूछा। अंधेरा होता जा रहा है। चढ़कर ऊपर जाने में बहुत बड़ा रिस्क होएगा। हमको बैक जाना होएगा और एक चक्कर काटना होएगा। तुम्हारा मतलब है चक्कर यानी राउंड? यस यस, राउंड, उसने कहा और अपनी नेकर की बैक पॉकेट में से एक नक्शा निकाल लिया। उसके बैक पॉकेट में कुछ दीगर अशिया के अलावा पेंसिल, टॉर्च भी मौजूद थी। उसने टॉर्च की रोशनी में कांपते हाथों के साथ नक्शे का जायजा लिया। चंद सेकंड्स के बाद बोली, यस, हमको वापस जाना होगा। एक दूसरे का हाथ थामकर वो वापस मुड़े। ये वही रास्ता था जहां से वो भागते हुए आए थे। उस तरफ एवलांच ने कोई तब्दीली रोनमा नहीं की थी। वो कभी चलते और कभी भागते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्हें मालूम था कि कैंप में सरमद साहब परेशानी की इंतहा को छू रहे होंगे। वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक उस रुख पर चलते रहे। अब उन्हें यहां से घूमते हुए वापस अपने कैंप की तरफ जाना था, यानी एक तरह का यू टर्न लेना था। लेकिन आदिल को अंदाजा हुआ कि क्रिस्टल कुछ भूल रही है। वो ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी कि कहां से टर्न लेना है और अपना रुख फिर से कैंप की तरफ करना है। मौसम बदस्तूर अबरालूद था और तेज बर्फानी हवा भी चल रही थी। अभी शाम नहीं हुई थी, लेकिन तारीकी शाम वाली ही थी। क्रिस्टल ने एक बार फिर नक्शा निकाला। आदिल ने टॉर्च पकड़ी। वो दोनों उस जगह को समझने की कोशिश करने लगे। आई थिंक थोड़ा सा और आगे जाना होगा, क्रिस्टल ने अपनी गुलाबी उर्दू में कहा। मतलूबा मोड़ ढूंढने के लिए वो एक बार फिर चल दिए। आदिल ने कहा, लगता है हमारे पास टाइम कम है। अंधेरा ज्यादा हो गया तो रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। टॉर्च की बैटरी भी डाउन हो रही है। क्रिस्टल ने फिर सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। उसकी सारी तवज्जो मतलूबा मोड़ ढूंढने पर लगी हुई थी। एक जगह वो ठिठक कर रुक गई। क्या हुआ? आदिल ने पूछा। हम काफी आगे निकल आया। इट इज डेंजरस। क्या मतलब? क्रिस्टल ने परेशान कुन अंदाज में दूर एक चोटी की तरफ इशारा किया।
غالباً یہ وہی چوٹی تھی جس پر چڑھنے کا وہ ارادہ رکھتے تھے۔ اب یہ عظیم الشان پہاڑ ذرا مختلف زاویے سے نظر آ رہا تھا۔ کرسٹل نے کہا، عادل، ہم کو اتنا دور نہیں آنا چاہیے۔ پاؤندوں کے ٹیریٹری یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوئیں گا۔ تو پھر تمہیں تو وہ جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں سے مڑنا ہے؟ ہم اندازے سے ٹرن لے لیتا، یہ آگے بڑھنے سے زیادہ اچھا۔ وہ بائیں طرف مڑ گئے۔ یہاں برف تھی اور راستہ دشوار تھا۔ انہوں نے چونکہ برف پر چلنے والے بوٹس نہیں پہن رکھے تھے، اس لیے دشواری ہو رہی تھی۔ ایک بار کرسٹل دوبارہ چونکی۔ اس نے ٹارچ کی مدھم روشنی راستے کی برف پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اس بار عادل کو بھی چونکنا پڑا۔ برف پر ان کے سامنے انسانی قدموں کے مدھم نشانات موجود تھے۔ یہ تازہ نشان تھے۔ او مائی گاڈ، یہاں کوئی ہے، کرسٹل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹارچ بجھا دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر حد الامکان تیزی سے قدم اٹھانے لگے۔ دفعتاً عادل کو ایک عجیب سا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا کہ نشیب میں کوئی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہ ایک سے زیادہ لوگ تھے۔ ان کے قدموں کی شپ شپ واضح سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز یقیناً کرسٹل نے بھی سن لی تھی۔ اس کے قدموں میں کچھ اور تیزی آ گئی، پھر اس نے ایک دم بھاگنا شروع کر دیا۔ عادل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یہی وقت تھا جب نشیب سے 3-4 سائے برآمد ہوئے اور ان کے پیچھے بھاگے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، کسی نے بھاری آواز میں پکارا۔ رن عادل رن، کرسٹل چلائی۔ ان دونوں نے رفتار کچھ اور تیز کر دی۔ پیچھے والے بھی اندھا دھند دوڑے۔ اچانک کرسٹل کا پاؤں پھسلا اور وہ اوندھے منہ گر پڑی۔ عادل 8-10 قدم تو بھاگتا چلا گیا، پھر رکا جب تک سائے کرسٹل تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اسے آ دبوچا۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ پھر یکایک اس نے خود کو چھڑایا اور دوبارہ بھاگنا چاہا۔ ایک دراز قد شخص نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ دبوچتا، عادل اس کے اور کرسٹل کے درمیان میں آ گیا۔ رک جاؤ، اس نے دراز قد شخص کو روکنا چاہا، پھر یکایک ایک ٹکر اس کے سینے پر ماری۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا کہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکتا ہوا نشیب میں چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دراز قد کے ساتھی عادل پر پل پڑے۔ ایک نے اس کے سر پر لاٹھی کی ضرب لگانا چاہی۔ عادل نے جھک کر خود کو اس کاری وار سے بچایا اور ایک طوفانی گونسے سے اس کا جبڑا ہلا دیا۔ دوسرے کے سینے پر عادل کی ٹانگ کی شدید ضرب لگی اور وہ برف پر دور تک پھسل گیا، لیکن اس سے ایک نقصان بھی ہوا۔ یہ شخص کرسٹل کے بالکل قریب گرا تھا۔ کرسٹل جو اب اٹھ کر ایک بار پھر بھاگنے کا سوچ رہی تھی، اس شخص کی پکڑ میں آ گئی۔ اس نے پہلے کرسٹل کو ٹانگوں سے پکڑ کر گرایا، پھر اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اگلے 5-10 سیکنڈ میں عادل نے اپنے دونوں حریفوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ گاؤں میں درختوں کے جھنڈ کے اندر وہ نوری نت کے پتلے کے ساتھ جو اندھا دھند مارا ماری کیا کرتا تھا، اس نے اسے لڑائی بھڑائی میں کافی طاق کر دیا تھا۔ چند سیکنڈز کے لیے تو یہی محسوس ہوا کہ شاید وہ اپنے حریفوں پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن پھر اچانک بازی پلٹ گئی۔ نشیب میں لڑک جانے والا دراز قد شخص نشیب سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹے دستے کی کلہڑی تھی۔ اس نے کلہڑی کی زوردار ضرب عادل کے سر کے پچھلے حصے پر لگائی۔ یہ الٹی کلہڑی کی ضرب تھی۔ اس نے عادل کے سر پر زخم تو نہیں لگایا، مگر چوٹ اتنی سخت تھی کہ عادل کی آنکھوں کے سامنے ان گنت رنگ برنگے ستارے ناچ گئے۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہ تھا کہ وہ اور کرسٹل ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس کے سر کے پیچھے ایک شدید ضرب لگی ہے اور وہ منہ کے بل سخت برف پر گر رہا ہے۔ عادل کے حواس دوبارہ بحال ہوئے تو اس نے خود کو کسی نرم اور نیم گرم جگہ پر پایا۔ سب سے پہلے اس کی نظر لالٹین پر پڑی جو چھت سے جھول رہی تھی۔ یہ مخروطی چھت یقیناً کسی خیمے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں باتوں کی مدھم آواز آئی اور نتنوں میں بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ اس کے سر پر کسی وزنی شے کی ضرب لگی تھی اور جس وقت وہ منہ کے بل گر رہا تھا، کرسٹل چلا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح بیٹھنے سے اس کے سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جدید لیکن خستہ حال خیمے میں ہے۔ خیمے میں 3 افراد موجود تھے اور ان میں وہ دراز قد شخص بھی شامل تھا جس کے سینے پر ٹکر مار کر عادل نے نشیب میں گرایا تھا۔ اس کی ایک کنپٹی اور کونی پر چوٹیں آئی تھیں جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کرخت نقوش والا ایک 30-35 سالہ شخص تھا اور کینہ توز نظروں سے عادل کو گھور رہا تھا۔ عادل کو پاؤندوں کے لباس اور حلیے کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا، ان کے مطابق یہ شخص یقیناً پاؤندہ ہی تھا۔ اس کے ساتھیوں کا حلیہ بھی یہی تھا۔
एक चपटी नाक वाला शख्स जिसकी कमर से छोटे दस्ते वाली कुल्हाड़ी बंधी हुई थी, आदिल को शायद थप्पड़ रसीद करने के लिए उसकी तरफ झपटा, लेकिन दराज कद शख्स ने उसे हाथ से रोक दिया। नहीं दाखून, अभी नहीं, वो भारी आवाज में बोला। तब आदिल को अचानक एहसास हुआ कि उसके हाथ पुश्त पर किसी कपड़े वगैरह से बंधे हुए हैं। बंदिश बहुत मजबूत थी, हाथ सुन हो रहे थे। वो ठीक से अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि कितनी देर बेहोश रहा है। लगता था कि ज्यादा टाइम नहीं गुजरा। उसने दाएं बाएं देखा, तब उसको अंदाजा हुआ कि खेमे में उसकी तरह एक और कैदी भी मौजूद है। यह भी कोई पाउंदा ही था। दूसरों की तरह उसके जिस्म पर भी भारी गर्म लिबास था। सर पर ऊनी टोपी थी जिसने आंखों और नाक के सिवा उसके चेहरे को भी ढांपा हुआ था। उस शख्स की उम्र 25 साल के करीब होगी। उसकी नाक से खून रिस रहा था और ऊनी सदरी भी कई जगह से फटी हुई थी। आदिल की तरह उसके हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए थे। इसके साथ साथ उसके पांव को भी रस्सी से बांधा गया था। वो एक गठरी की तरह खेमे के एक कोने में पड़ा था। क्रिस्टल उस खेमे में कहीं नहीं थी। वो कहां है? आदिल दराज कद शख्स से मुखातिब होकर फुंकारा। यही है वो फरंगन, और बड़े आराम से है, दराज कद ने जहर खुंद लहजे में कहा। आदिल के तन बदन में आग लग गई। वो गरज कर बोला, उसे कहां रखा है तुमने? उसे यहां लाओ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। लगता है जरूरत से ज्यादा गर्मी है तुम्हारे अंदर। हम तुम्हारा ये गर्मी बड़ी अच्छी तरह ठंडा करेगा। एकदम चश्मे के पानी के माफिक हो जाओगे। एक गैरतमंद जवान की सारी तपिश आदिल के अंदर बेदार हो चुकी थी। वो चिंगाड़ा, मैं पूछता हूं कहां है वो? इसके साथ ही उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। चपटी नाक वाले दाखून ने उसे धक्का देकर फिर पुश्त के बल गिरा दिया। शायद वो आदिल पर चढ़ ही दौड़ता, लेकिन दराज कद वाले ने एक बार फिर हाथ के धक्के से उसे रोका। वो चंद लम्हे तक आदिल को जलती नजरों से देखता रहा, फिर बोला, यहीं पर है तुम्हारा वो हमशीरा। हमारा बीवी उसके पास है। जब तक तुम ठीक रहोगे उसको कुछ नहीं होगा। उसने खेमे की जिप खींचकर खेमे का दर खोला, फिर उसकी जाली हटाई। यख बस्ता हवा का झोंका अंदर आया। आदिल ने देखा खेमे से 8-10 कदम के फासले पर एक दूसरा खेमा लगा था। यह भी जदीद लेकिन पुराना खेमा था। उसको 3-4 जगह से मुरम्मत किया गया था। आदिल ने सोचा शायद इन पाउंदों ने यह खेमे चोटी की तरफ जाने वाले कोपैमाओं से छीने होंगे। बादज़ां उसका यह अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। उस खेमे के ऐन सामने बर्फ पर पत्थरों से एक क्यारी सी बनाई गई थी। उस क्यारी में अलाव रोशन था। अलाव के करीब क्रिस्टल सर झुकाए बैठी थी। शोले उसकी सुर्ख सफेद चेहरे पर अपना अक्स डाल रहे थे। क्रिस्टल के करीब भी एक और औरत बैठी आग ताप रही थी। यह दरमियानी उम्र की मकामी औरत थी। यकीनन यही दराज कद शख्स की बीवी थी। अगले 5-10 मिनट में खेमे के अंदर आदिल और दीगर अफराद में जो गुफ्तगू हुई, उससे पता चला कि दराज कद शख्स का नाम राबे खान है। राबे खान और उसके साथी अपने किसी दुश्मन का पीछा करते हुए इस इलाके में पहुंचे हैं, और यह दुश्मन वही था जो बंधा हुआ खेमे के कोने में पड़ा था। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, उसका एक साथी भी था जो अभी तक मफरूर था। अब यह इत्तेफाक की बात थी कि राबे खान और उसके साथियों की नजर आदिल और क्रिस्टल पर पड़ गई और उन्होंने उन्हें धर लिया। राबे खान ने आदिल को खैरनाक नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारा बाकी साथी किधर है? हम दोनों ही हैं। यह बकवास तुमने पहले भी किया है, लेकिन यह मानने वाला बकवास नहीं है। सच बताओगे तो तुम्हारा खाना खराब नहीं होगा, वरना ढूंढ तो हमने उनको वैसे भी लेना है। हम लोग ग्रुप की शक्ल में आए थे, लेकिन बाकी लोग काफी पीछे ही हिम्मत हार गए थे। शगर के आसपास कहीं रुक गए थे। हम दोनों ही यहां तक आए हैं। आदिल ने जवाब तराशा। वो नहीं चाहता था कि उसकी गलती का खुमियाजा सर सरमत और हुमायूं वगैरह को भी भुगतना पड़े। तो हमारा कैंप किधर है? चटपटी नाक वाले दाखून ने नफरत भरे लहजे में पूछा। कैंप नहीं है। कैंप तो तब होता जब हमने यहां किसी चोटी पर चढ़ना होता। हम तो बस यूं ही घूमते घूमते आगे निकल आए और फिर रास्ता भूल गए। हमारा बाकी सामान जंगलोट में एक मकामी पोर्टर के डेरे पर पड़ा है। और तुम क्या समझता है हम तुम्हारी इस हजार दास्तान पर यकीन कर लेगा और तुम्हारा माथा चूम कर तुम्हें छोड़ देगा? क्या हम तुमको ऐसा ही गधा नजर आता है? हम तुम्हारे सामने तुम्हारी उस फरंगन सहेली की चमड़ी उधेड़ेगा और साथ ही तुम्हारा भी।
تم غیر قانونی کام کرو گے اور اس کے نتیجے میں بچ نہیں سکو گے۔ اس لڑکی کی تلاش بڑے زور و شور سے شروع ہو جائے گی۔ تم لوگ تو پھنسو گے ہی، تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ پھنسیں گے۔ دراز قد شخص نے ایک ہاتھ گھما کر عادل کے چہرے پر مارا۔ اس زوردار گھوسے نے عادل کا سر گھما کر رکھ دیا اور اس کے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل گیا۔ وہ پہلو کے بل گر گیا تھا۔ دراز قد رابع خان نے سرسراتے لہجے میں کہا، ہم کو دھمکاتا ہے، قانون سے ڈراتا ہے۔ تم بہت دور نکل آیا بچے، یہاں ہم خود ہی قانون ہے، یہاں وہی ہوتا ہے جو عام چاہتا ہے۔ تمہارے جیسے 10 لوگوں کو یہیں پر خلاص کر کے برف میں کاٹ دے تو کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں، اور اگر تم نے کوئی اڑی مڑی کیا تو ہم یہی کرے گا۔ لیکن کیوں؟ کیا جرم کیا ہے ہم نے؟ تمہارا جرم بہت بڑا ہے اور تم اسے اچھی طرح جانتا بھی ہے۔ تم چوری چھپے بانگڑی کی چوٹی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تم کو معلوم ہوگا کہ سامنے والے راستے سے تم کو چڑھنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے تم پیچھے کی طرف آیا ہے۔ ہم سب جانتا ہے، ہم گدھے کا بچہ نہیں ہے۔ ایک دم چلانے کی آواز سنائی تھی۔ یہ کرسٹل ہی تھی۔ عادل نے چونک کر خیمے سے باہر دیکھا۔ پاؤندہ عورت نے غالباً غصے میں کرسٹل کے بال نوچے تھے۔ وہ اسے کچھ کھانے کے لیے کہہ رہی تھی مگر وہ انکار کر رہی تھی۔ وہ مسلسل انگلش بول رہی تھی۔ ایک طرح سے اس نے اچھا ہی کیا تھا۔ اس نے ان لوگوں پر یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ انگلش کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ داخون نے عادل کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچا اور پھنکارا، دیکھ بیٹا، ہم نے تمہارے ساتھیوں کو ڈھونڈ تو ویسے بھی لینا ہے، بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہم کو، لیکن اگر تم خود بتا دے گا تو ہم بھی تم سے تھوڑا نرمی کرے گا، ورنہ تیری اس فرنگن کا مزہ تو ہم ابھی چکھ لے گا تیرے سامنے۔ رابع خان نے خوفناک لہجے میں کہا۔ وہ لمحوں میں بالکل بے رحم نظر آنے لگا تھا۔ یہ بات تو اب عادل کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو سر سرمت اور ہمایوں سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھ سکتا۔ اب دوسرا راستہ یہی تھا کہ وہ ان سے 1-2 یقین دہانیاں دے کر انہیں کیمپ تک لے جائے۔ عین ممکن تھا کہ سر سرمت اس صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ وہ کسی طرح کوئی راستہ نکال لیں۔ اب عادل کے ذہن میں رہ رہ کر پچھلے 2 دن کی صورتحال بھی آ رہی تھی۔ اس نے سرمت صاحب کو کچھ پریشان اور الجھا ہوا پایا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کیمپ کے آس پاس ہی رہا جائے، زیادہ دور نہ جایا جائے۔ شاید ان کی چھٹی حس جو بہت تیز بھی تھی انہیں خطرے سے خبردار کر رہی تھی، اور یہ خطرہ اب ٹھوس حقیقت کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ پاؤندوں کے حد تیز چڑھ چکے تھے۔ اچانک کرسٹل ایک بار پھر چلائی۔ عادل نے روزن میں سے دیکھا۔ چپٹی ناک والا داخون کرسٹل کو کھینچتا ہوا خیمے کی طرف لا رہا تھا۔ اس نے کرسٹل کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کرسٹل نے داخون کے پیٹ میں لات رسید کی اور زور لگا کر خود کو چھڑانا چاہا۔ عقب سے ایک دوسرا شخص آیا۔ اس نے کرسٹل کو عقب سے دبوچا اور اٹھا کر برف پر پٹک دیا۔ کھینچا تانی میں کرسٹل کی شرٹ کا گریبان پھٹ گیا تھا اور وہ نیم اوریا ہونے لگی تھی۔ داخون وحشی انداز میں اس پر جھپٹا۔ اندر خیمے میں دراز قد رابع نے اپنی موٹی صدری کے نیچے سے پستول نکال لیا اور عادل کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ کرسٹل کی وہی حالت ہونے والی تھی جو عقاب کے پنجوں میں چڑیا کی ہوتی ہے۔ عادل زور سے چلایا، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں۔ رابع خان نے ہاتھ کے اشارے سے داخون کو روک دیا۔ دونوں افراد نے نیم اوریا کرسٹل کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے خیمے میں لے آئے۔ کرسٹل کی نیکر برف سے لتھڑی ہوئی تھی اور گرنے سے ایک گھٹنے پر تازہ خراشیں آئی تھیں۔ کھینچا تانی میں اس کا ایک جوگر بھی اتر گیا تھا جو ایک پاؤندے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ عادل کو دیکھ کر کرسٹل کو ذرا حوصلہ ہوا۔ وہ اشک بار لہجے میں بولی، عادل تو ہم، لیکن پھر یکا یک ٹھٹک کر چپ ہو گئی۔ وہ یہاں اردو بولنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے انگریزی میں ہی 1-2 فقرے بولے جو مفہوم عادل کی سمجھ میں آیا۔ وہ یہی تھا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، ان کو سر سرمت کے بارے میں پتا دینا چاہیے، شاید وہ ان سے کوئی ڈیل کر سکیں۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ داخون نے تھوڑی دیر کے لیے عادل کے ہاتھ کھول دیے اور اسے کھانا کھلایا۔ یہ گوشت اور چاول پر مشتمل تھا، ساتھ میں الائچی والا قہوہ تھا۔ عادل کے کہنے پر کرسٹل نے بھی چاولوں کے 2-4 لقمے لیے۔ رابع کی بیوی کا نام سمونہ معلوم ہوا۔ اس نے خیمے میں آ کر کرسٹل کے گھٹنے اور کونیوں کی تھوڑی سی مرم پٹی کی۔ یہ مرم پٹی اسی سامان سے کی گئی جو کرسٹل کے بیک پیک سے برآمد ہوا تھا۔
सुर्ख रेगजीन के उस बैकपैक में कुछ दीगर सामान भी मौजूद था। आदिल को उस नक्शे का ख्याल आया जो क्रिस्टल अपनी नेकर की पिछली पॉकेट में उड़ से फिरती थी। उस नक्शे में कैम्प की जगह की निशानदेही बड़ी वजाहत से की गई थी। अगर वो नक्शा उन पाउंडों के हाथ लगता तो उन्हें कैम्प के बारे में उन दोनों से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। यकीनन पाउंडों के हाथ नहीं लगा था, शायद क्रिस्टल ने उसे कहीं छुपा दिया था। जैसा कि आदिल को बाद में मालूम हुआ, जब वो यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर पकड़े गए थे तो क्रिस्टल ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए वो नक्शा पॉकेट से निकालकर अंधेरे में कहीं फेंक दिया था। रात गुजर गई। अभी उजाला पूरी तरह फैला नहीं था कि राबे खान और उसके 2 साथी आदिल और क्रिस्टल को लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। राबे खान के तीसरे साथी और राबे की बीवी को उस बंदे के पास ही रहना था जिसे बांधकर खेमे के गोशे में डाला गया था। वो लोग पैदल रवाना हुए। आदिल के हाथ बदस्तूर पुश्त पर बंधे हुए थे। हां, क्रिस्टल को बांधने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। दाखून के पास छोटी नाल की भरी हुई राइफल मौजूद थी। ऑटोमेटिक राइफल उसने कंधे से लटका रखी थी, ताहम अपना हाथ ट्रैगर के आसपास ही रखा हुआ था। तकरीबन 8 घंटे बाद वो उस हजारों टन बर्फ के पास से गुजरे जो कल से पहर एवलांच ने बुलंदियों से लाकर दामन में बिखेरी थी। उस बर्फ की वजह से आदिल और क्रिस्टल का रास्ता बंद हुआ था और उन्हें कैम्प की मुखालिफ सम्त में सफर करना पड़ा था। आदिल का दिल अब बेतरह धड़क रहा था। कैंप पर जाकर न जाने क्या सूरत हाल पेश आना थी। वहां कुछ भी हो सकता था। पाउंडों के पास असला मौजूद था और जहां तक आदिल का अंदाजा था, हुमायूं के सामान में भी एक लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल मौजूद था। यह पिस्तौल यकीनन जाती दिफा के लिए ही था। अगर वहां कोई खतरनाक सिचुएशन पैदा होती तो सबसे ज्यादा रिस्क क्रिस्टल और आदिल ही के लिए था। कैंप से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही उनको सर सरमत और हुमायूं की झलक नजर आ गई। जो ही राबे और आदिल एक तंग घाटी के सिरे से बाहर निकले, दूर नीचे नशेब में सर सरमत और हुमायूं के हेवले नजर आए। यकीनन वो उन दोनों की तलाश में सरगर्दा थे। वो चूंकि नशेब में थे, इसलिए राबे खान और उसके साथियों को नहीं देख सकते थे। राबे खान के साथी ने राइफल अब कंधे से उतारकर अपने हाथ में ले ली और उसका सेफ्टी कैच हटा लिया। बर्फपोश चट्टानों के दरमियान बड़ी एहतियात से आगे बढ़ते वो लोग सर सरमत और हुमायूं के करीब पहुंच गए। आदिल ने राबे के पूछने पर उसे बताया कि उसके दोनों साथियों के पास आतिशी असला नहीं है। फिर भी राबे इजी होना नहीं चाहता था। उसने आदिल को मजबूर किया कि वो ओट से निकलकर बुलंदी पर खड़ा हो और अपने साथियों को आवाज दे। आदिल के लिए यह बड़ा मुश्किल और दिल गिरफ्तार कर देने वाला मरहला था। राबे ने मजीद ताकीद करते हुए कहा, कोई चालाकी मालाकी ना दिखाना, वरना हम गोली चलाने में देर नहीं करेगा। आदिल नशेब से निकलकर बुलंदी पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज देने से पहले ही सर सरमत ने उसे देख लिया। सरमत साहब और हुमायूं दोनों पूरी तरह चौंक गए। शायद उन्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा था। कौन है? उन्होंने तस्दीक के लिए बुलंद आवाज में पूछा। मैं हूं सर, आदिल। आदिल ने भी पुकार कर जवाब दिया। वो दोनों तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में आदिल की तरफ आए। यक सरमत साहब रुक गए। शायद उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो दोनों दाखून की राइफल की रेंज में थे। राबे खान और उसके साथी एक साथ नशेब से निकले और सामने आ गए। खबरदार, कोई हरकत किया तो हम गोली चला देगा, दाखून ने गरज कर कहा। सरमत साहब और हुमायूं हक्का बक्का खड़े थे। उनकी सारी खुशी चंद सेकंड्स के अंदर शदीद परेशानी में ढल गई थी। आदिल के सीने में मायूसी की लहर दौड़ गई। पाउंडों ने उन्हें घेरे में ले लिया और उन्हें हाथ खड़े करने के लिए कहा। बड़ी एहतियात से उनकी तलाशी ली गई। सरमत साहब के लिबास में से एक वॉकी टॉकी के अलावा एक नक्शा और चंद 100 रुपए की करेंसी निकली। एक वॉकी टॉकी हुमायूं के लिबास में से भी निकला, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉल्ट पिस्तौल भी बरामद हुआ। पिस्तौल की बरामदगी के बाद राबे खान ने खा जाने वाली नजरों से आदिल को घूरा। आदिल ही की तरह सरमत साहब और हुमायूं के हाथ भी पुश्त पर बांध दिए गए थे। इस काम के लिए नायलॉन रस्सियां पहले से उन लोगों के पास मौजूद थीं। वो लोग उन्हें चलाकर कैंप में ले आए। आदिल ने देखा, सरमत साहब का चेहरा यूं तो पुरसुकून था, लेकिन आंखों में गहरी परेशानी मुंजमिद थी। आदिल खुद को बहुत खजल सा महसूस कर रहा था। दरहकीकत ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ था। अगले 10-15 मिनट बड़े तकलीफ दे थे। उन लोगों ने क्रिस्टल और सरमत साहब समेत उन चारों को एक तरफ जमीन पर बिठा दिया।
दाखून राइफल बदस्त उनके सर पर खड़ा था। बाकी अफराद नदीदों की तरह उनके कैंप में घुस गए। जिसके जो हाथ आया उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ साथ वो खाने पीने की चीजों पर भी हाथ साफ कर रहे थे, खाते जा रहे थे और साथ साथ थैलों में भी ठूंस रहे थे। टिन फूड और चॉकलेट्स उनके लिए ज्यादा कशिश की चीज थी। तीसरी अहम चीज करेंसी थी। फिर राबे खान के हाथ में एक नक्शा आ गया। वो ध्यान से उसे देखने लगा। उस नक्शे पर हुमायूं ने मुख्तलिफ निशानात लगा रखे थे। उन निशानात से यह वाज़ेह होता था कि वो किस रास्ते से किस चोटी पर जाने का इरादा रखते थे, यानी वही बांगड़ी नामी चोटी। राबे खान ने नक्शा आदिल की आंखों के सामने लहराया और जहर खुंद लहजे में बोला, क्या तुम अब भी यही कहेगा कि सिर्फ सैर सपाटे के लिए यहां घूम रहा था? आदिल बोला, यह नक्शा वैसे ही हमारे सामान में पड़ा है, उस तरफ जाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। चोर अपनी चोरी कभी नहीं मानता, तुम भी नहीं मानेगा, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे लिए खुशी का बात है कि तुम्हारे साथ हमारा मुलाकात हो गया। ये कैसी खुशी की बात है कि इसके लिए तुम्हें हम पर राइफल तानने की जरूरत पड़ी हुई है? सरमद साहब ने अपने मखसूस लहजे में कहा। राबे खान ने दाखून को हाथ का इशारा किया और बोला, राइफल नीचे कर लो। ये ठीक कह रहा है, ये हमारा मेहमान है, बल्कि पक्का मेहमान है। राबे खान ने पक्का मेहमान अजीब से अंदाज में कहा था। आदिल चौंक गया और उसने हुमायूं को भी चौंकता हुआ महसूस किया। दाखून ने मुस्कुराते हुए राइफल नीचे कर ली। इससे कोई ऐसा फर्क भी पड़ने वाला नहीं था। उनके हाथ तो बंधे हुए थे। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि ये लोग उनको पकड़कर पहाड़ की दूसरी तरफ अपनी पाउंदा बस्ती में ले जाना चाहते हैं। यकीनन इन लोगों की हिम्मतें अब बहुत बढ़ चुकी थीं। पहले वो चोटी की तरफ जाने वालों को सिर्फ रोकते होंगे, अब पकड़ने की हिम्मत भी रखते थे। क्रिस्टल ने दबे लफ्जों में सरमद साहब को बता दिया था कि किस तरह कल से पहर वो जॉगिंग करते हुए जरा आगे निकल गए और कैसे एवलॉन्च की वजह से उन्हें रास्ता बदलना पड़ा, जिसका नतीजा पाउंदों से मुठभेड़ की सूरत में निकल आया। सरमद साहब जिस तरह जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त करने का बेपनाह हौसला रखते थे, उसी तरह गालिबन ज़हनी दबाव और परेशानी को भी झेल लेते थे। उनका चेहरा बदस्तूर पुरसुकून रहा। हाँ, आंखों में अब भी तफक्कुर की गहरी परछाइयां थीं। वो जैसे तेजी से कुछ सोच रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज में राबे खान को मुखातिब किया और बोले, अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। यहां कोई पर्दा नहीं है ब्रदर, तुम सबके सामने अपनी अलिफ लैला कह सकता है। वो सख्त तमस्खुर लहजे में बोला, मेरे ख्याल में अकेले में बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। 6.5 फुट कद का राबे खान कुछ देर गहरी नजरों से सरमद साहब की तरफ देखता रहा। उसके भाड़ जैसे मुंह में खुश्क गोश्त करने वाला था। निवाले को अपने मुंह में घुमाते हुए बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो कर लो अकेले में बात, आ जाओ। सरमद साहब के हाथ बदस्तूर पुश्त पर बंधे थे। वो उठकर खेमे में चले गए। राबे खान भी उनके साथ गया। वो वहां तकरीबन 1 घंटा मसरूफ गुफ्तगू रहे। इस दौरान में 1-2 बार राबे खान बाहर भी आया और उसने दाखून से सरगोशियों में कोई मशवरा भी किया। फिर एक बार उन्होंने खेमे के अंदर नक्शा भी मंगवाया। राबे खान के तासुरात भी अब कुछ बदले हुए नजर आते थे। बहरहाल दाखून मुसलसल उनके सरों पर राइफल बदस्त मौजूद था। वो गाहे बगाहे क्रिस्टल को भी हरीस नजरों से घूर लेता था। क्रिस्टल बदस्तूर रात वाले लिबास में थी। चमकीली धूप में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और यूं लगता था कि अभी रुखसारों से खून टपक पड़ेगा। आदिल को अंदाजा हुआ कि खेमे के अंदर राबे खान ने सरमद साहब के हाथ खोल दिए हैं और वो ज्यादा बेतकल्लुफी के माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं। दोपहर कोई 11 बजे के करीब राबे खान और सर सरमद की अहम गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची। आदिल ने देखा कि उसके फौरन बाद राबे खान कहीं जाने के लिए तैयार नजर आने लगा। उसके बाकी दोनों साथी, जिनमें से एक दाखून था, वहीं पर रहे। आदिल ने सरमद साहब से कहा, यह राबे खान कहां गया है? अपने किसी काम से, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा। आदिल ने दुखी लहजे में कहा, सर, मुझे इस दाखून की तरफ से खतरा महसूस हो रहा है। इसकी आंखों में कमीनगी है, कहीं ये क्रिस्टल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, राबे खान से सारी बात हो गई है। क्रिस्टल ने पूछा, क्या ये हाम को जाने देगा?
کرسٹل کو بولتا دیکھ کر داخون بھڑک اٹھا، گرج کر بولا، او میم، اپنا آواز بند کرو، سب چپ ہو جاؤ ورنہ ہمارا میٹر گم جائے گا۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ رابع خان کی واپسی کافی تاخیر سے ہوئی۔ وہ تقریباً 4 بجے واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کی جوان سال بیوی بھی تھی جس کا نام سمونہ معلوم ہوا تھا۔ وہ اور رابع خان اپنے ساتھ دونوں کو خیمے میں بھی لے آئے تھے۔ یہ خیمے پیک ہونے کے بعد بالکل مختصر سے ہو جاتے تھے۔ عادل کو اندازہ ہوا کہ وہاں خیمے میں موجود بندھے ہوئے شخص کو بستی کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے اور رابع بیوی کو لے کر یہاں آ گیا ہے۔